ए क्लास रो ऑडियो रिकॉर्डिंग करी होची आरो ग्रुप रे करूथले ऑडियो रिकॉर्डिंग आपन के करि परिबे ऑडियो रिकॉर्डिंग न जानि नांती टेक्निक आज्ञा सर स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं करूची आज्ञा आज्ञा स्क्रीन रिकॉर्डिंग हेई पारुची सर हाँ से ऑडियो रिकॉर्डिंग कले आमे अन्य पिल्लां को केतोले शेयर करि पारंते सेति पई कोथली कोन 103 रो रिकॉर्डिंग प्राय अक्टोबर बैच रो पिल्ला करि कि देइछंती सुना पानी भाई बोली सीटू लास्ट कॉल क्लास में सर करी की रखिची आज्ञा आज्ञा लास्ट क्लास में सर मु करी की रखिची हाँ वेरी गुड प्रदान दो वेरी गुड पठाई दे भाई हाँ हाँ सरी जाओ एक क्लास टा सरी गले मतलब पठेबे आओ एक क्लास रो रिकॉर्डिंग रखंतु दिटा को पठेबे आओ आज्ञा सर ठीक अछि वेरी गुड हेल्प अदर्स गुड माने जॉइन करि पारु नाहंती समान भी बेनिफिटेड हेबे हम संगरे हला हाँ ठीक नमस्ते नमस्ते भाई फुल स्टार्ट ओके ये बुढ़ा मास्टर खाई खाई देख ये बुढ़ा टा सिने करूची ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ଏଟା ସିନିୟର ବେଶା ବତା वीडियो ऑफ कर ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଏସ म्यूट କରି ଦିଅନ୍ତୁ बस बस मोड भी म्यूट कर दियंतु वीडियो ऑफ कर दियंतु वेलकम टू दिस वर्चुअल क्लासरूम ऑफ Orissa State Open University. This is from the PG Department of Political Science. We are to deal with PPS 104 democratic decentralization in India. And we have already discussed 3 units, unit 1, 2, 3, and in this class we will pick up another 3 units. Unit 4 dealing with local self-government in the era of globalization. Unit 5 dealing with evolution of local governance. And unit 6 dealing with the organization and working of Panchayat Raj system in Odisha. First, start with unit 4. Local self-government in the era of globalization. New localism and glocalization. Globalization versus glocalization, a new challenge to globalization, that is glocalization, and we will pick up that concept in this particular class. You all know about globalization. Globalization is a process through which the entire world is to be integrated and the geographical boundaries are to be lifted, shifted, and instead of that, there will be free flow of knowledge, information, technology, capital, everything. There will be deregulation of everything, and everything will have a free flow. And there will be a big market. Every consumer in that market will be benefited globally. And the basic purpose is to integrate the local economy with the global economy. And thereby, all the countries in the modern world, they will be benefited. Either as an importer or an exporter or the consumer, all will be benefited. Globalization ର କଥା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି 1990s ପରେ ଯାହାର ଜଗତୀକରଣର ପ୍ରଭାବ ବଢି ଯାଇଛି ସେଥିରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନରେ ଆମେ ପୃଥିବୀଟାକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ବାଉଣ୍ଡରୀ ରହିବନି ଏଟା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଏଟା ଚୀନ ଏମିତି ଯୋଉ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ବାଉଣ୍ଡରୀଜ ରହିଛି ସେ ଡିମାର୍କେସନ କିଛି ରହିବନି ଫ୍ରି ଫ୍ଲୋ ହେବ ନଲେଜର ଇନଫର୍ମେସନର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲର କିଛି ବାଧା କୋଠି ରହିବନି ସପୋଜ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମେନ୍ ପାୱାର ବହୁତ ଅଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସ ବହୁତ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟିକେ କମ ଅଛି ତେବେ ଯାହା ପାଖରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଧିକ ଅଛି ସେ ଏଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବ ଯାହା ପାଖରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି ସେ ତାକୁ ବିକିବ ୟୁଜ୍ କରାଇବାକୁ ଏବଂ ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆମର ମେନ୍ ପାୱାର ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରପରଲି ହେଲା ପରେ ଯିଏ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛି ସେ ବି ଲାଭ ପାଇଲା ଯିଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛି ସେ ବି ଲାଭ ପାଇଲା ଆମମାନଙ୍କର ମେନ୍ ପାୱାର ୟୁଜ୍ ହେଲା ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସ ୟୁଜ୍ ହେଲା ମଧ୍ୟ ଫର୍ ଦି ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଜିଡିପି ଗ୍ରସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ ହେଲା ଆମର ତେଣୁ
with the collaboration of everyone, ସମସ୍ତଙ୍କର collaboration ରହିବ, ସମସ୍ତେ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ deregulation ହବ, जो ଆଗରୁ ସବୁ regulate କରି ଦିଆ ହଉଛି, single window regulation will be there. ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କାରଖାନା କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ବାହାର ବିଦେଶୀ ଲୋକକୁ 5ଟା ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଆପ୍ରୋଚ କରିବାକୁ ପଡିବନି, ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ରିଲିଜ ତାକୁ କରି ଦିଆଯିବ, ରେଗୁଲେସନ ଏତେ ରହିବନି ଏବଂ ତାରିଫ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କମନ यूनिफॉर्म तारीफ रहिबो, मोस्ट फेवर्ड नेशन नो जो कथा रहिबो नाही। आपण माने 3-4 दिन तळे खबर काज मान को पढुथिबे जे व्हाट डेवलपमेंट हैव बीन इन यूक्रेन एंड रशिया वार। रशिया को इकोनॉमिकली आइसोलेट करबा पई अमेरिका तार ट्रेड रिलेशनशिप संग ऊपर बा ट्रेड जो गोडा करूची प्रोडक्ट्स सब करूची, पेट्रोलियम हो बा किसी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो, ता ऊपर से 500% तारीफ ऐड कर दला। या फଳରେ यूरोपियन नेशंस दे विल बी डिस्करेज्ड टू हैव इकोनॉमिक रिलेशनशिप, ट्रेड रिलेशनशिप विथ रशिया, thereby Russia's economy will suffer and Russia will be compelled, because of economic reasons, Russia will be compelled to have a compromise with Ukraine, keeping in view the big brother attitude of USA। जो अमेरिका रो जो बड़वाई पणिया रही बिग ब्रदर attitude रही ता पाखरे मुंडो नुई रशिया को कंप्रोमाइज करिया पड़िबो यूक्रेन संगे, तार अर्थनीति खराब हे चीन एते आम संगे लागुची। We have seen many wars right from 1962 onwards, किंतु चाइना जितेबले भी जहाँ करूची टिके तापर चेक हेकी रह जाउची, कारण द इकोनॉमी ऑफ चाइना डिपेंड्स वेरी मच ऑन इट। वी आर प्रोवाइडिंग ए बिग मार्केट टू चाइना, एवरीथिंग आमे बहुत जिंस एटी प्रोडक्ट बिकुछु, आमे 1012 प्रोडक्ट पई ता संगे एग्रीमेंट साइन करछंती, ता छडा भी और बहुत प्रोडक्ट चोरा लुचारे भी बिक्री होची। ई प्रोडक्ट बिक्री ऊपर इंडिया इज प्रोवाइडिंग ए बिग मार्केट एवं ई मार्केट ता तार इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करूची। जदि हम से मार्केट बंद कर दवा तार क्वालिटी देखि कि तिब्बत पर आक्रमण करूची बा जो अरुणाचल प्रदेश रो किछि अंचल जेटा मोर बोली आमे ताकू नै कि जदि तार इकोनॉमी को बंद कर दवा तबे the entire economic condition of China will be very precarious। तेणु से दृष्टि चाइना टिके चेक हेकी रह जाउची, कहूची पार्टी करूची, अटैक करूची, एयर अटैक करूची, सीमा रे विवाद करूची, बट स्टिल देन टिके भी चेक हेकी रह जाउची बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रीजंस। तेणु ग्लोबलाइजेशन आमे सब गुडा को हटाई देवा को चाहछंती। देयर विल बी pluralism, there will be regards to every identity, even though it is a minority, even though it is an underdeveloped economy, everyone is to be accommodated। Instead of the policy of confrontation, conflict and war, we should adopt the policy of accommodation and growth। हालांकि तेणु ग्लोबलाइजेशन एगुड़ा सब ऑब्जेक्टिव से 1919 ऑनवर्ड्स 1990 रो परवर्ती अवस्था रे पृथ्वी रे ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड चलछि एवं लास्ट एंड तार हमें रखिचंती द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए ग्लोबल विलेज। हे नहीं, वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन, वी आर मूविंग इन द राइट पॉजिटिव डायरेक्शन, जाउचंती हमें आस्ति सूचक दिगरे। ए डे विल कम व्हेन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ग्लोबल पूरा गां कर दवा पृथ्वी तक। देयर विल बी नो वर्ल्ड स्टेट, अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट, वर्ल्ड स्टेट, इंटरनेशनल सिस्टम एगुड़ा को आमे ना कहउतले, बर्तन सेगुड़ा सब हटाई देलेनी, ता जगह आमे कहउचंती ग्लोबल विलेज। से ग्लोबल विलेज रे कौन सी गोटे कंट्री रो सिटीजनशिप रहिबनी, कौन सी कंट्री रो सॉवरेनिटी रहिबनी एवं पीपल्स पार्टिसिपेशन रहिबो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट रे। लास्ट अप्रोच सेटा को से जो क्वेश्चन हबो सेटा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट निज कथा निजे तळे बुझी। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है गलानी सब इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस रे चली, टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट एगुड़ा सब कम्युनिकेशन लिंक को बढ़े देलानी, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ग्लोबली संभव हो पारुछि एवं जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी आमे ग्रहण करछथि, कारण ग्लोबलाइजेशन नो पॉलिसी होछि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एलपीजी। तेणु जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी को आमे ग्रहण करछथि से लिबरलाइजेशन पॉलिसी इज liberalizing the foreign trade, liberalizing the investment policies and removal of all restrictions on foreign investment। आमे जेते सब इकोनॉमिक अलायंसेस करूछंती, अर्थनैतिक दृष्टिकोण जेते संधि करूछंती, राजीनामा करूछंती,
सब गुड़ाक लिबरालाइजेशन फल संभव हो पारुछि तेणु आज स्लाइड आपको पठे दी आपण माने देखिबे स्लाइड रे सब लिबरालाइजेशन कोन सेटा ठीक सर कोन ना लिबरालाइजेशन उदारीकरण आमे उदार हे जाइछन्ती वी आर अलाउइंग अदर्स विदाउट एनी बैरियर्स we are allowing the foreign investors, we are allowing the technology foreign other technologies which have been not developed here, we are allowing their capital to be invest from different parts of the globe, we are allowing them to have utilize our own natural resources and manpower. आमे उदार नहले हबनी मु जदी रेस्ट्रिक्ट जदी कंजर्वेटिव हे जिबी अन्य को अलाउ न करिवि अन्य को प्रश्रय न देबी सुजोग न देबी रेस्ट्रिक्शन ता ऊपर रखिबी तबे मोर भी ग्रोथ हबनी एवं ता पाखरे कैपिटल थिबो ता का पाखरे टेक्नोलॉजी थिबो सेगुडा कर मध्य प्रॉपर यूटिलाइजेशन हे परिबो तेनु आमे लिबरलाइज हे की फॉरेन इन्वेस्टर मानु को अलाउ करूचंती अट्रैक्ट करूचंती तांकर इन्वेस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एठी यूटिलाइज करिया हमर लाभ हले से माने भी सित्रु तांको इन्वेस्टमेंट पाई से माने भी शेयर पाइबे लाभ पाइले आमे तांको जो इकोनॉमिक एलियंसेस करूछन आ मिलिटरी एलियंस को जोर दउनांती आमे सामरिक संधि को जोर दउनांती इकोनॉमिक एलियंस डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज मध्य रे साउथ मध्य रे जो सब इकोनॉमिक एलियंसेस होची जेतोले सार्क तयारी हेतला प्रथमे साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन इकोनॉमिक सोशल एस्पेक्ट होने की करा हेतला पॉलिटिकल कंसीडरेशन मोटे नथिला आस्ते आस्ते आमे सेतरे पॉलिटिकल जोडुचंती टिके टिके रंग दउचंती किंतु इकोनॉमिक एलियंस तेणु इकोनॉमिक एलियंस बा संधि जो करूचंती सेतरे पूरा फ्री लिबरल नहले हबनी सार लिबरल है कि मार्क देइचंती खुशी है कि नरम है कि नंबर देइचंती लिबरलाइजेशन तेणु लिबरलाइजेशन नहले आमे ए जो बैरियर्स गुडा कर रहिछि टेरिटोरियल बैरियर्स हो बा हमरो गवर्नमेंटल बैरियर लॉ और रेगुलेशन नो बैरियर्स हो ताकू उठै परिबा नाही तो 1990 मसिया पूर्व इंडिया रे भी से अवस्था थिला आमे फॉरेन इन्वेस्टमेंट पई एते सुजोग दउ नथिले किंतु जेतला हम अर्थनीति खराब हे गला एवं देयर वाज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ इंपोजिशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इन 1991 नरसिम्हा राव रो गवर्नमेंट से तळे थिले एवं नरसिम्हा राव डाकिले मनमोहन सिंह को हु वाज द एक्स फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नर फाइनेंस मिनिस्टर असे ही नथिले गवर्नर थिले रिजर्व बैंक रो तांको इकोनॉमी रिफॉर्म पई तांको परामर्श मागिले and then he joined as the finance minister एवं तांकर पॉलिसी ए जो बर्तन जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी हम इंडिया रे देखुचंती द ब्रेन चाइल्ड ऑफ मनमोहन सिंह अर्थनीति को सुधारिबा पई सेटा एकमात्र बाट थिला आ बाट ही नथिला जदि हमें फॉरेन इन्वेस्टर मान को अट्रैक्ट न करि थानते ट्रेड बैरियर हटै न थानते एवं जो इकोनॉमिक एलियंसेस क्लोजर इकोनॉमिक टाइज बढ़ै न थानते कंट्रीज मान को सहित तेबे कदापि आजिर अर्थनीति आमर ए अवस्था रे आमे 4 नंबर अर्थनीति रे पहुंचिरणी 2 नंबर 3 नंबर हवा पई चेष्टा चलैछंती 5 वर्ष खंड भितरे दैट गोल तो से संभव ही पारिछि बिकॉज़ ऑफ दैट पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन व्हिच स्टार्टेड इन इंडिया इन 1990 onwards हला कि असते प्राइवेटाइजेशन टिके सर कहि दो जीबा प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन भी अछि आपनकर जीबा इथरे हमें सेतरे ए करबनी खाली टिके कहि दोछि लिबरलाइजेशन हैला माने खाली कोन गवर्नमेंट एजेंसी करिवो कि नाही गवर्नमेंट एजेंसी ऊपर पब्लिक सेक्टर ऊपर हमें पूरा खाली कंप्लीटली डिपेंड करि परिबा कि ना हमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को मध्य अलाउ करिबा तेनु लिबरलाइजेशन गिव्स स्कोप फॉर प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट इंडस्ट्रीज प्राइवेट एंटरप्राइजेस मल्टीनेशनल कंपनीज they should be engaged in the process of growth process of utilization or process of realization of the goal of globalization लक्ष्य को पूर्ण करिया पई हमें प्राइवेटाइजेशन को जीवा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एमएनसीज मान को ऊपर डिपेंड करिबा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से ऊपर डिपेंड करिबा एवं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को अति बेसी रे हमें समर्थन करिबा आजकल पीपी मोड बोली आपण सुनथिबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी प्राइवेट रो काम पब्लिक सपोर्ट दउछंती सरकार सपोर्ट दउछंती जगह दे देले सपोर्ट देले रूल्स किछि तयारी कर देले प्राइवेट तार इन्वेस्टमेंट कला लाभ किछि मनोवृत्ति अल्प रखिला गवर्नमेंट तक रेगुलेट कला कामटा चलला बहुत एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मध्य पीपीपी मोड रे होउछि बहुत डाक्तरखाना मध्य पीपीपी मोड रे करा होउछि हला सरकार पखरे ते पैसा नाही
गवर्नमेंट पाखे तो पैसा ना प्राइवेट लोक पाखे पैसाटा अच्छे प्राइवेट एंटरप्राइज पाखे पैसा अच्छे सी इन्वेस्ट कर इन्वेस्ट कर कौन मागणार इन्वेस्ट कर लाभ मनोवृत्ति अच्छी लाभ निश्चित भाव लाभ न पाइले से करबनी बट दैट प्रॉफिट मोटिव इज रेगुलेटेड बाय पब्लिक इंस्टीट्यूशंस सरकार ताकू नियंत्रण करेंगे एत लाभ को रहना नर्सिंग होम भाई साधारण डाक्तखाना भाई तू सोच ना यू आर रेगुलेटेड तेणु पीपी मोड रे जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप रे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करुच्ची प्राइवेट तार टेक्नोलोजी जोगाउची प्राइवेट तार लीडरशिप रे ताकू चलाउची किंतु गवर्नमेंट रो कंट्रोल रेगुलेशन मध्य किछि परिमाण ता पाखरे रहउची ता ऊपर रहउची तेणु लोक से बेनिफिट पाउछंती खाली जो प्राइवेट को आम छाड़ी दौरान प्राइवेट अति परिमाण लाभकर मनोवृत्ति रखुची वी आर फाइंडिंग दिस पर्टिकुलर एग्जांपल इन द केस ऑफ द nursing homes and hospitals established by different agencies private agencies बहुत पैसा नौचंती किंतु जेटा पीपीपी मोड को पळे आछी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को पळे आछी टिके रेगुलेटेड हो जाउची तेणु आम सरकार पाखे जो पैसा नाही क्रंच ऑफ फाइनेंस रही अर्थनीति रे अभाव रही लैक रही लैकिंग रही ताकू फुलफिल करने आम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को आणुचंती तेणु लिबरलाइजेशन न प्राइवेट आसीबो केमती कोरिया गोटे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एटी गोटे कारखाना प्रतिष्ठा करिवो इंडिया रे से कारखाना प्रतिष्ठा पई आमे ताकू सेति सुयोग दिया जिबा दरकार तेणु लिबरल आमे हेले इंडियन पॉलिसी इंडियन इकोनॉमी लिबरल हेले इंडियन गवर्नमेंट रो पॉलिसी सेति लिबरल हेले से आसी केटी इन्वेस्ट करिवो आमे कोरिया रो सहाय्य रे से फ्रांस रो सहाय्य रे से अमुक रो सहाय्य रे सब विभिन्न इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट करछंती that is possible private organization is being allowed with a growth is being allowed to have the goals to be achieved tanko goal भी profit motive goal भी पूर्ण हबो यारे सर्विस डिलीवरी मध्ये ठीक हबो प्रॉफिट मोटिव तो छाड़ी कि समय इन्वेस्टमेंट करिवेनी किंतु प्रॉफिट मोटिव विल बी रेगुलेटेड ए मार्जिनल वे रे रहइबो तेणु प्राइवेटाइजेशन न हेले लिबरलाइजेशन रो गोल पूर्ण होई परिबोनी बा लिबरलाइजेशन को वर्कआउट करबा को हेले प्राइवेटाइजेशन कॉन्सेप्ट निहाती दरकार तेणु एलपीजी बोली द कहजे लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन देन ग्लोबलाइजेशन अपन माने भी पढ़िबे हमरो जो सब अन्य टॉपिक सब रही पब्लिक पॉलिसी रही हला आउ एपरिकी आमर थियोरी रे मध्ये तो 101 पेपर भी अछि सेतरे भी ग्लोबलाइजेशन टॉपिक रही सब जगह रे ग्लोबलाइजेशन को जगह रे नाही डिफरेंट एस्पेक्ट रो हमें तको पढुछु एटी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कॉन्टेक्स्ट में ग्लोबलाइजेशन को पढुचंती एवं जो कथा में आपण पचारले बोली मु तको एक्सप्लेन कली नले खाली ग्लोबलाइजेशन रो हमें टिके कहि दे कि हमें से को पढै था तो स्लाइड रे मु देखै छी आपन को ग्लोबलाइजेशन रो फीचर्स देखै छी एवं ग्लोबलाइजेशन रो को फैक्टर्स पर ग्लोबलाइजेशन होची जो कथा में आलोचना कले ताकू मध्ये फर्स्ट स्लाइड रे मध्ये देखै छी सो टेक हेल्प ऑफ दो स्लाइड गुडा को नहीं जिबे आपन साइट को निज व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं जिबे बा प्रिजर्व करके रखिबे आई होप इट विल बी ऑफ बेनिफिट फॉर यू देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रो नेचर को ए ग्लोबलाइजेशन जुगरे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रो नेचर टा ना नेचर होचे या द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन जेतोले आसुची आमे जदि लोकन को इन्वॉल्व गोटे जगह रे कारखाना टे हो से कारखाना रे कारखाना प्रतिष्ठा पूर्व कौन करा होची ना सर्वे करा होची इंपैक्ट स्टडी करा होची जे कारखाना ता प्रतिष्ठा हेले व्हाट विल बी इट्स इंपैक्ट एनवायरनमेंट ऊपरे लोकंगर लाइफ ऊपरे लोकंगर लाइवलीहुड ऊपरे व्हाट विल बी इट्स इंपैक्ट लोक माने विरोध करछन आरे परिवेश प्रदूषण हबो कुजंग पाखरे गोटा कारखाना प्रतिष्ठा करा जिबार थिला बड़ कारखाना रे कारखाना प्रतिष्ठा हितांता बहुत लोक लाभवान हितांते लोक ताको विरोध कले कहीं विरोध कले ना से कहले आमर पान आमर माछ चाष एगुड़ा आमर जो कम जो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड एगुड़ा सब बाधा प्राप्त हम तेणु जहाँ पड़े कारखाना से बंद है लोक प्रतिवाद तेणु लोकल सेल्फ गवर्नमेंट माध्यम ग्लोबलाइजेशन जो लक्ष्य रहा लोकल जो एमएनसी माने आसीबे मल्टीनेशनल कंपनीज माने आसीबे एटी एस्टैब्लिश करेबे एस्टैब्लिशमेंट इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करेबे प्रॉपर यूटिलाइजेशन हबो टेक्नोलॉजी रो कैपिटल रो ग्लोबली ताको हम यूज करबा बड्डो मार्केट पाइबा बिकिबा पय पूरा पृथ्वी सारा आर प्रोडक्ट एटा लोकल केवल हे परिबो लोक जदि समर्थन करिवे हबो अपन सब जगह रे
जो आपण जो जगह लोक आपण माने अछंती आपण देखिबे जोटी व्हेनेवर ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज टू बी एस्टैब्लिश्ड सेठी गोटे सर्वे करा होची लोक जन शुणानी करा होची लोकन को पचरा होची लोकल सेल गवर्नमेंट ग्राम पंचायत इत्यादि ग्राम सभा सब यूटिलाइज करा होची पार्टिसिपेटरी अप्रोच टू डेवलपमेंट को ग्रहण करा होची सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस आर इन्वॉल्व different NGOs, civil society organizations, है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस नॉन वॉलंटरी जो वॉलंटरी बॉडीज ताको सब यूटिलाइज करा होची ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट से माने रहउछ ये सब यूज हेई कि आमे ग्लोबलाइजेशन रो लक्ष्यटा को पूरण करिया को चेष्टा करछु यदि लदी दबा लोकंग ऊपर जबरदस्ती पार्टिसिपेटरी अप्रोच को ग्रहण करिबानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी को ग्रहण करिबानी तेबे निश्चित भाव में लोक माने ताको विरोध करिवे व्हाट एवर हैपेंड इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इन द केस ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बहुत जगह रे सिंगूर हो बा ओडिसा रे उजंग एरिया हो बहुत जगह रे पीपल आर प्रोटेस्टिंग नियमगिरी रे जेतले खनि खनन होची पीपल आर प्रोटेस्टिंग कारण लोकन को कन्विंस करा जीव लोकन को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट माध्यम रे लोकन को पाखरे पहुंचीबो से ऑर्गेनाइजेशन इंपैक्ट को एनालिसिस करबो तांगा डेवलपमेंट पई काम करेबो ह्यूमन राइट्स प्रिजर्वेशन पई लाइवलीहुड रो प्रॉपर केयर नबो लाइफ रो प्रॉपर प्रोटेक्शन जोगेबो सिक्योरिटी जोगेबो तेणु एगुड़ा को जदि न करा जाए पीपल विल नॉट एक्सेप्ट द इंपैक्ट द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन तेणु इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन लोकल सब गवर्नमेंट हैज इट्स फिजिबल एक्जिस्टेंस तर आवश्यकता सेति पई रहिछि लोकालिटी टाको ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड संगे जोड़ीबा लोकल टाको ग्लोबल प्रोसेस संगे ताको इंटीग्रेट करिया पई चेष्टा करिबा दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ local self government in the era of globalization आमे एतरे लोकलिज्म कथा कहू लोकलिज्म कोन ना लोकलिज्म गोटे स्मॉल सेटलमेंट को बुझौछि रूरल एरिया रे बुझौछि एवं जोठी इंडिविजुअल्स माने लोक माने बाहर रो जो बेनिफिट्स रहला आउटसाइड द लोकल एरियाज जो बेनिफिट्स रहला सेथुर मध्ये समान डिवाइड होना वंचित होना न्यू लोकलिज्म नारे आमे प्रकाश करछु आगरो लोकलिज्म कन्फाइंड हे किरो स्मॉल सेटलमेंट रूरल एरिया रे कन्फाइंड हे किरो किंतु वर्तमान आमे से स्मॉल सेटलमेंट को गोटे हायर प्रोडक्टिविटी को नौचंती रूरल टेरिटोरी को आमे अर्बन टेरिटोरी बा अदर आउटसाइड वर्ल्ड संगे जोड़ीबा को संभव आम पाखरे हे पारि सपोज एनवायरमेंटल इश्यूज रहला एनवायरमेंटल इश्यूज टा जदि आमे ताको कहबा एटा गोटे ग्लोबलाइज्ड इश्यू क्लाइमेट चेंज होउची ग्लोबल वार्मिंग हे जाउची एटा ग्लोबलाइजेशन रो डोमेन रे रहउची बा ग्लोबलाइजेशन रो फील्ड रे एटा रहउची इट इज इन द डोमेन ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व होबनी आमे तळ स्तर रु आमे नबा लोकल स्तर रु नबा एठी ट्री रो प्लांटेशन हबो एठी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन रो रक्षा करया पय सॉइल इरोजन को रक्षा करया पय प्रचेष्टा करा जिवो ता परे विभिन्न स्टेप एठी नै सल्ला परे आमे जो ग्लोबलाइजेशन रो प्रोसेस माध्यम रे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन रो रक्षा पाइबा पय जो लक्ष्य रखिछन्ती दैट विल बी पॉसिबल तनो वी शुड मूव फ्रॉम द ग्रास रूट हमके तळु जीवा को पड़ियो तो इश्यू ऑफ एनवायरनमेंट इज ए ग्लोबल इश्यू ऑफ ह्यूमन यूनिटी इज ए ग्लोबल इश्यू किंतु एठी तळे हमको ताको रिलीजियस डॉगमेटिज्म को रक्षा करिया पड़ियो कास्ट डिग्रेडेशन कास्ट कॉन्फ्लिक्ट रो डिस्क्रिमिनेशन रो रक्षा करिया पड़ियो सोशल जस्टिस दो पड़ियो एटा सब तळ स्तर रो करिया पड़ियो तो न्यू लोकलिज्म रो एगुडा सब ऑब्जेक्टिव एवं न्यू लोकलिज्म रे अनदर कांसेप्ट इज देयर that is an alternative to responsibility carried by the federal government जो संघीय सरकार रहिचंती केंद्र रे गोटे राज्य रे गोटे जो सरकार रहिचंती से संघीय सरकार रो ये गोटे बेटर अल्टरनेटिव हिसाब रे बाहरुची जे लोकल बॉडीज माध्यम रे लोकल पार्टिसिपेशन माध्यम रे लोकल एनवायरनमेंट माध्यम रे लोकल अवेयरनेस क्रिएट करिकी आमे लोकल इश्यू को भी समाधान करि परिबा एवं लोकल इश्यू इज इन ए ब्रॉडर वे दैट इज द ग्लोबल इश्यू ए लोकल इश्यू गुडा को एनवायरमेंटल एठी डिग्रेडेशन हला आइए गोटे ब्रॉडर इश्यू ही जे कि वर्ल्ड रे ग्लोबल वे रे बा ग्लोबल फील्ड रे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बा क्लाइमेट चेंज इत्यादि रो प्रॉब्लम को तैयारी कला तेनु लोकलिज्म रे न्यू लोकलिज्म रे बा लोकलिज्म कांसेप्ट रे वी प्रोवाइड
an alternative system to the responsibility which was earlier carried by the federal governments. आगु जोटा सरकार करूथिले केंद्र राज्य सरकार माने करूथिले एटी लोकल बॉडीज माध्यम रे आमे ताको पूरण करिया को जोटा कि बेसी पार्टिसिपेटरी मॉडल टाको लोकंकर पार्टिसिपेशन रहले विद्रोह हबनी लोकंकर इंक्लूजन रहले विद्रोह हबनी लोकंकर एक्सक्लूजन रहले दूरी की रखले लोकंको विद्रोह हबो पार्टिसिपेशन न रहले सपोर्ट लोकंकर एते आसीबनी तेनु इट इज a complement to the federal government, we can say. It is not in confrontation with the federal government, it is a complement to the federal government. The nation, national function, national responsibility, national global resolution, आमे locally आरंभ करूछन्ते locally ताको कार्यकारी करूछन्ते तेनु एटा गोटे आइडियल रिप्लेसमेंट बोलिया को आमे कहबा पूरा आदर्श एई मॉडल ले आमे काम करले आमे हमर लक्ष्य पूर्ण हे पारिबो आको आमे डिसफंक्शन बोली कहबानी दिस इज रियली द फंक्शन हला एटा कोरे वास्तव कार्यधारा डिसफंक्शन नुहे जबरदस्ती आमे लोकल बॉडी टाको इन्वॉल्व करे दोनांती इट इज रेमेडी फॉर ऑल द डिसफंक्शंस व्हिच हैव बीन देयर फ्रॉम द नेशनल एट द नेशनल लेवल से जोड़ा करि पारु नाही तार कार्य गुडा को आमे न्यू लोकलिज्म रे करि पारुछन्ती न्यू लोकलिज्म माध्यम रे करि पारुछन्ती गोटे स्लाइड रे मु देखैछि डिफरेंस बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन भितरे आमे त डिफरेंस आनंती आमे कहि सालेनी में आगु भी बहुत वर्तमान डिस्कशन कलेनी किछि समय हलानी ग्लोबलाइजेशन is a process through which there will be free flow of ideas, free flow of capital, free flow of information, technology, everything. Beyond boundary, there will be borderless approach. There will be a system where there will be no homogenization. Homogeneity will not be there. There will be multiculturalism. All cultures, majority, minority, they will have their identity. And when their identity is recognized, at that time there will be no identity crisis, and that will lead to unity. That will lead to integrity. And when there will be uniformity, there will be homogeneity, there will be compulsions from the top, then people will not accept it spontaneously. And there will be a eruption in the democratic process. तेणु ग्लोबलाइजेशन इते गुड़े लक्ष्य को पूरण करिया पई फ्री फ्लो उपरे नजर दउची बॉर्डरलेस कांसेप्ट उपरे गुरुत्व दउची एवं थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ हैविंग ए ग्लोबल विलेज इन फ्यूचर द फाइनल गोल द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ द कांसेप्ट ग्लोबलाइजेशन इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए ग्लोबल विलेज किंतु ग्लोबलाइजेशन कोन ना ग्लोबलाइजेशन ने आमे लोकल ताको ग्लोबल संगे जोड़ीबा को चेष्टा करूछंती 1980s परवर्त अवस्था रे आमे ए प्रोसेस को आनिछंती ए हेटेरोजेनिटी को रिकॉग्नाइज करूछंती गोटे इंटरफेस आनुछंती ग्लोबल और लोकल भितर समन्वय आनुछंती डिस्कशन आनुछंती इंटरफेस तांका भितर गोटे वार्ता आदान प्रदान कथा करूछंती लोकल संगे ग्लोबल जोड़ीबा पई चेष्टा करूछंती हेटेरोजेनिटी को लोकल क्षेत्र रे हेटेरोजेनिटी विभिन्न ए लोकल से लोकल विभिन्न जगह हेटेरोजेनस कांसेप्ट आछी विविधता भर्ती के रहउची होमोजेनिटी नहीं तो सेई लोकल कांसेप्ट को आमे ग्लोबल कांसेप्ट संगे जोड़ुचंती दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लोकल इज इंटीग्रेटेड विथ द ग्लोबल ideas and there is recognition of heterogeneity there is recognition of the need of interface between local and global local cultures local habits they should be dealing with they should be in touch with the global changes global challenges we can say not global change but global challenges but जो local habit हमर रहला लोकल कल्चर रहला स्थानीय अंचल जो संस्कृति रहला जो अभ्यास व्यवहार रहला से केमिति ग्लोबल चैलेंज को फेस करूची ग्लोबल विश्वस्तरीय चैलेंज गुडा को मोर आंचलिक संस्कृति उपरे व्यवहार उपरे केमिति पडुची ताकू विचार को नबको पड़िबो ग्लोबलाइजेशन रे तारी उपरे गुरुत्व दिया होची
तेणु ग्लोकालाइजेशन देयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स ग्लोबलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन ग्लोकालाइजेशन देयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स globalization and localization. It is a service which is given to the local people, distributed through globally. Globally distribute करा होची लोकों को पाई local लोकों को पाई से सर्विस टा delivered होची. Service delivery at the local level स्थानीय लोकों को दिया होची किंतु global influence ता ऊपरे रहुची. Globally it is controlled, globally it is distributed. Globally the policy of accommodation, policy of adjustment is put into operation. तेणु ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन को आप जो कॉम्पिटिटिव परीक्षा देवे ग्लोबलाइजेशन लोकलाइजेशन साधारण भाव में आसो पचारे भी चाकरी बाकरी आप परीक्षा देले आप पचारे लोकलाइजेशन टा कौन why localization is important जो localization को कहीं हमें गुरुत्व दउछन ना localization is important हमें जति डिस्कशन करले आपण सेहि जानि पारुथिबे the localization is important because it opens the door to global market आपण देखंतु किछि दिन पूर्व जदि आपण 15 वर्ष तळ को पळेबे 10-15 वर्ष तळ को गोटे मोबाइल ला कॉस्ट केते थिला गोटे टीवी रा कॉस्ट केते थिला गोटे कंप्यूटर रा कॉस्ट केते थिला बर्तमान कॉम्पिटिटिव मार्केट रे आमे केते नुवा नुवा फीचर्स रो जिंस पाइलेनी एवं क्वालिटेटिव जिंस पाउचती एट ए चीपर कॉस्ट दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल मार्केट एटे हजारे प्रोडक्ट आसी ये बिक्री होची विभिन्न कंपनी रो प्रोडक्ट आसी बिक्री होची मु ता भितर कंपेयर करूची मो पैसा भितर किए मते बेटर सर्विस देई परुची मो पैसा भितर किए मते बेसी फीचर्स रो जिंसटा देई परुची longevity रहुची यूटिलिटी रहुची सब गुडा को म कंपेयर करछि तो क्वालिटेटिव गुड्स at a cheaper rate is possible because of globalization and because of the situation in the global market तो ग्लोबलाइजेशन ग्लोबल मार्केट माध्यम रे गुड कंज्यूमर बेनिफिटेड होछि जो कंज्यूमर टे काली बहुत कष्ट पाउथला जिंसटे पाइबा पई क्वालिटेटिव जिंस पाई पारु नथिला सी आज रीजनल बैरियर उठी गला परे ग्लोबल मार्केट रे ता घर पाखरे विश्व स्तरीय जिंस क्वालिटेटिव जिंस सस्ता रे पाई पारछ हला एवं आउ गोटे लाभ होउची लोकलाइजेशन रे जे हम लोकल इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी संगे जोड़ी पारुछन देयर इज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ग्लोबल इकोनॉमी को लोकल इकोनॉमी संगे जोडुछन जहा फल रे अक्रॉस बाउंड्रीज हम सीमा बाहर आमे ट्रेड करि पारुछंती ट्रेड एग्रीमेंट साइन करि पारुछंती एवं इकोनॉमिक डेवलप कोऑपरेशन डेवलप करि पारुछंती तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज बीइंग डेवलप्ड इज बीइंग boosted trade agreements are internationally signed across the boundaries exchanges transactions are made that is the features एगुलो संभव होची इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पे व्हिच इज द इंपैक्ट ऑफ लोकलाइजेशन हम जोडु चंती आको लोकल को ग्लोबल संगे जोडु चंती जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत तयारी होची कहबू जहा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लोकली बहुत तयारी होची हम लोकल लोको मैन पावर ह्यूमन रिसोर्स प्रॉपर्ली डेवलप हे पारि न थांता किंतु ग्लोबलाइजेशन फଳରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକାଲାଇଜେସନକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିଲି ଲୋକାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ବା ଲୋକାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଗ୍ଲୋବାଲି ମୁଁ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି ଏବଂ ଫ୍ରି ଫ୍ଲୋ ହେଲା ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉଟା ଅଭାବ ସେଟା ବାହାରୁ ଆସିଲା ମୋ ପାଖରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଭାବ ବାହାରୁ ଆସିଲା ମୋ ପାଖରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଅଭାବ ବାହାରୁ ଆସିଲା ମୋ ପାଖରେ ଏକ୍ସ ର ଅଭାବ ମାର୍କେଟର ଅଭାବ ବାହାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ଦିଆଗଲା ଏ ସବୁ ଫଳରେ ଜବ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲା मैनेजमेंट एंड सप्लाई ऑफ लेबर फोर्स संभव हो पारिला तेणु जॉब क्रिएशन हवा फल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अधिक तैयारी हो पारला एवं अनएम्प्लॉयमेंट रो प्रॉब्लम सॉल्व हवा पड़ले पर्सनल इकोनॉमिक ग्रोथ संगे नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ मध्य संभव हो पारला
ତେଣୁ ଏଇଭଳି ବହୁତ କାରଣ ପାଇଁ ଲୋକାଲାଇଜେସନ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଲୋକାଲାଇଜେସନ ଇଜ ଅନଆଭଏଡେବଲ। Then we'll go to evolution of local governance, unit 5. आमे लोकल गवर्नमेंट कहले कौन बुझन? लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नेंस कहले आमे कौन बुझन? लोकल गवर्नमेंट गोटे कॉन्सेप्ट जोटा कि वैरायटी ऑफ सर्विस को लोकल अथॉरिटीज मान को द्वारा लोकली मैनेज करवा प्रोसेस को बुझे था। वैरायटी ऑफ सर्विस से ही पारे, हेल्थ सर्विस ही पारे, एजुकेशन प्रोवाइडिंग एजुकेशनल फैसिलिटीज ही पारे, जे कौन सर्विस। तो ये सब सर्विस गुड़ा को, वैरायटी ऑफ सर्विस को जितने लोकल इनिशिएटिव रे, लोकल अथॉरिटी मान को द्वारा मैनेज करा जाए तो हमें लोकल गवर्नेंस बोली कहता है। एवं लोकल गवर्नमेंट एभली गोटे कॉन्सेप्ट जोटा कि कारण गवर्नेंस गवर्नमेंट एका कथा नुहे, आपण माने आगुरु भी पढ़ी चंदी जानि चंदी जे गवर्नेंस इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ इट। गवर्नमेंट कहले खाली ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट को बुझौची, तार ऑफिशियल्स मान को बुझौची, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मान को लेजिस्लेटिव रे ताको बुझौची, तार फंक्शंस तार पावर्स को बुझौची, कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप भितरे जेतिके हेई पारे। किंतु गवर्नेंस कहले गोटे बड़ को बुझौची, गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ दैट, different private organizations are part of that, different civil society organizations are part of that. So governance is a broader concept, ଆଉ governance ର ଗୋଟେ part होची government। तो government टा ଗୋଟେ popularly elected bodies ମାନଙ୍କ द्वारा चालुची local government टा, एवं जोथिरे ସେମାନେ local issues गुड़ा को local leadership माध्यम रे local जो नीड्स को आखि आगे रखी, प्लानिंग प्रोग्राम को आखि आगे रखी, सरकारंकर बड़ सरकारंकर स्टेट गवर्नमेंट रो गाइडेंस द्वारा, बायलॉज द्वारा रेगुलेटेड है कि कार्य करंती, लोकंकर लोकल नीड गुड़ा को पूर्ण करबा पई चेष्टा करंती। जानते नेशनल डिफेंस पई सी जीवेनी, समाने मॉनिटरी मनी तयारी माने प्रिंटिंग ऑफ पेपर नोट्स हम तापई तांगा मुंड बिंदिबनी, इंटरनेशनल ट्रेड हम तांगा पई तांगा मुंड बिंदिबनी, स्टेट रो इंटरनेशनल सिक्योरिटी डिफेंस मिलिटरी प्रिपेयर्डनेस रहिबो तापई तांगा मुंड बिंदिबनी। लोकल नीड मोर गाँ रे रास्ता दरकार, गाँ रे पीवा पानी दरकार, गाँ रे जनस्वास्थ्य दरकार, पब्लिक हेल्थ दरकार, ए गुडा को लोकल इनिशिएटिव माध्यम, लोकल इनहेबिटेंट मानकर दाबी को नहीं जेतबेले आमे कार्य करंती, सरकारंकर गाइडेंस द्वारा, सरकारंकर बायलॉज और रूल्स रेगुलेशन रो नियंत्रण माध्यम रे सेतबेले वी कॉल दैट एज लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ देयर ओन अफेयर्स बाय पीपल ऑफ ए लोकालिटी। गोल्डिंग बोली जने इंटरनल आमर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपर्ट एंड ऑथर ऑफ हाई रेप्यूट, he is of the view that local government is the management of the local affairs by people of the locality. Tuta ko ame alochona kore se tar definition le hochi। I have given you 5 to 6 definitions, setru apan gote dita definition ko use karibe parikha। V Venkata Rao, local government is the part of the government which deals mainly with the local affairs administered by authorities to the state government but elected independently of state authority by a qualified resident। तो लोकल गवर्नमेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, सरकारंकर गोटे अंश विशेष किंतु माने लोकल अफेयर्स सहित रिलेटेड कंसर्न एवं समाने जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो माने स्टेट गवर्नमेंट रो डेपुटेड हिचंती एवं लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स माने जो माने रहिचंती से माने लोकल एरिया रे से काम गुडी को संपादन करिवे। So local government is the government within which local bodies are legally permitted to adopt variations in administration। आउ जनकर मत हेसिक E.L. हेसिंकर मत, it is a particular government, local government is a particular type of government where the local bodies, स्थानीय सरकार गुडी को अनुष्ठान गुडी they are legally permitted, आईन अनुसार सरकार तंको क्षमता अर्पण करिछन
to adopt variations in administration. तांको क्षेत्र रे प्रशासनिक क्षेत्र रे आंचलिक क्षेत्र रे स्थानीय क्षेत्र रे प्रशासन को कोबड़ी भाव रे कार्यकारी करैले बाट देखैले लोककर कल्याण हे परिबो लोकल नेट फुलफिल हे परिबो that is taken into consideration by the local government. तेणु आमे we have taken certain definitions. आपण 5-6टा डेफिनेशन भितर गोटे 2टा डेफिनेशन को यूज करिवो ऑलमोस्ट समान कथा समस्त कहउछ एवं जहाँ हमें पाइले से डेफिनेशन गुड़ा को भितर ताको हमें गोटे स्लाइड रे रखिछथि एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट. एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट. there will be a local area, well defined local area. एटा एई अंचलटा एई टाउनटा एई सिटीटा एई विलेजटा एटा होची एरिया एटा. then that should be, there must be proper fixation. The state governments must draw out the area, check out the area of the local area. एटा को अंचल एटा एई अंचल अमुक म्युनिसिपालिटी अमुक ब्लॉक तार गोटे एरिया डिमार्केट हिक रहिबो राज्य सरकारंकर निर्देश मते राज्य सरकारंकर आईन किए सिटी काम करिवो ना लोकल अथॉरिटी माने काम करिवो. लोकल अथॉरिटी काम करिवो इलेक्टेड representatives directly by the people in that particular area sei mane काम करिवो. particular locality re body of persons who are elected directly by the people in that particular area so mane have a local authority. civic amenities bisare semanakar concern rahi. The primary objective of the local government is to provide certain civic amenities to the people. Primary इटिके पूर्व को डिफेंस तंगर काम नुहे, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री तंगर काम नुहे, इंटरनेशनल ट्रेड तंगर काम नुहे, जुडिशियरी रो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रो संविधान इंटरप्रेट करबा तंगर काम नुहे. सिविक एमिनिटीज जोगड़ा करहिला, बेसिक सर्विस जोगड़ा करहिला, इनहैबिटेंट मानकर लोकल नीड्स रहला, रोड्स टे दरकार, बाजार टे दरकार, डाक्तरखाना टे दरकार, स्कूल टे दरकार, ए सब जो ड्रिंकिंग वाटर ए सब जो आवश्यकता रहला से गुडा को फुलफिल करा. सिविक एमिनिटीज. लोकल फाइनेंस पैसा कोठु आसीबो ना केंद्र सरकार राज्य सरकार को ऊपर समान डिपेंड करिवे नै. ग्रांट्स सरकार तंगु देबे विभिन्न डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पाई एवं दैट ग्रांट विल बी यूटिलाइज्ड बाय द लोकल बॉडीज. द लोकल गवर्नमेंट raises the finance even by tax. टैक्स माध्यम रे करि परिबे समान भी तो से टैक्स ता बहुत कम. लोकल एरिया रे जो टैक्स माध्यम रे फंड्स रेंज बहुत कम. बेसिकली दे डिपेंड ऑन ग्रांटिंग एड फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर डिफरेंट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स. ग्रांटिंग एड हला सरकारंकर अनुदान हला तंगर मुख्य आयर सूत्र बा आयर सूत्र रो मुख्य अंश और मेजर चंक्स जाउची ग्रांटिंग एड. जदिओ समान भी निजर टैक्स सिस्टम भी करि परिबे. स्टेट फाइनेंस कमिशन आमे नवा जे स्टेट फाइनेंस कमिशन नुआ नुआ प्लान भी करिवो टू रेज द फाइनेंस और मेक द लोकल बॉडीज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. कारण जदि से माने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट न होबे प्रोजेक्ट हाउ दोज प्रोजेक्ट्स विल बी वर्कड आउट. कारण आमे जानि छथि एडमिनिस्ट्रेशन रो पक गाडी रे फाइनेंस होउची ऑटो जो पेट्रोलियम बा फ्यूएल को गाडी चलीबा पई फ्यूएल रो आवश्यकता रहिछि, ईंधन रो आवश्यकता रहिछि एवं सरकार रूपक गाड़ी चलवा आवश्यकता कहार ना अर्थ रूपक फ्यूएल रहा फाइनेंस रूपक फ्यूएल ईंधन सेटा. तेणु जदि लोकल बॉडीज मान पाखे प्रॉपर फाइनेंस न रुहे तेबे से माने कदापि तंगर कार्य ठीक भाव में करि परिबे नाही. तेणु से 73rd अमेंडमेंट 74th अमेंडमेंट से माने फाइनेंस स्टेट फाइनेंस कमिशन करछंती अंगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को बढ़ेवा पई से माने विधि व्यवस्था करछंती. खाली तंग पावर्स दे देले हपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट मध्य करिया को पड़िबो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मध्य बढ़ेवा को पड़िबो. लोकल ऑटोनॉमी तांकर फ्रीडम रहिबा दरकार. खाली जदि राज्य सरकार माने पूरा तंग नियंत्रण कले ऑटोनॉमी तांगर न रहिला दे कैन नॉट परफॉर्म देयर लीगल राइट्स और देयर ड्यूटीज प्रॉपर्ली. खाली पावर दे देलो किंतु कंट्रोल ता ऊपर सबऑर्डिनेशन हे कि सबऑर्डिनेटेड हे कि समान रहिले प्रॉपर्ली यूटिलाइज न करि पाले लोकल ऑटोनॉमी रहिला नाही. तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ट्रांसफरिंग पावर. आप 73rd 74th आम तो बारंबार पढ़ुंट पुणी भी पढ़ा ये पेपर भी आहरी पढ़ा देखिए आप 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट रे सो पावर्स को डेलीगेट कर दिया है संपूर्ण भाव में इयरमार्क कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशनली दी पावर्स इयरमार्क टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज रूरल हो अर्बन हो से पावर गुड़ाक एक्सरसाइज करेंगे. पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे मध्य से व्यवस्था रखा है.
तेणु आम नवा 73 74 पढ़ेगा बेलू भी आम आलोचना कर तेणु लोकल ऑटोनॉमी से स्वतंत्र पावर दबा दरकार से पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी आम देदेले खाली हेनी पैसा दबा बजेट रे पैसा आनिबा पैसा दबा फाइनेंशियल स्टैंड से बढ़ेवा फाइनेंशियल एफिकेसी बढ़ेवा फाइनेंशियल फुटिंग से दृढ़ पावर से ठीक भाव में दिगले से पावर्स को यूटिलाइज करें लोकल ऑटोनॉमी दरकार तेणु दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ए लोकल गवर्नमेंट ता संगे संगे लोकल लीडरशिप लोकल अकाउंटेबिलिटी और लोकल पार्टिसिपेशन रहे लोकल जो पार्टिसिपेशन लोक माने आंचलिक स्तर जो मान पार्टी काम करुची तल स्तर ग्रासरूट रे ऑर्गेनाइजेशन काम करुची दे मस्ट पार्टिसिपेट in all the developmental programs of the locality. The people must participate. They should be encouraged. Local people should be encouraged for that purpose. And that participation and wide participation will make the program success. The developmental programs, the policies of the government that will achieve success only because of the participation, local participation of the people. Local leadership, बाहर वाणी के हमें लौदी दबान नेता टाको, से MP MLA टाको इठी लौदी दबाने. Local leadership should be there. Leadership or leaders should come in direct contact with the people in day-to-day affairs also. दैनन्दिन घटना रे जी आम संस्पर्श रे आसुची हमें ताको ही गुरुत्व दबा. लोकल एरिया पाई आमे जदि बाहर गोटे बड़ इलेक्टेड ऑफिस तैयारी कर देले इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं आसिले बियरर्स इलेक्टेड काउंसिल्स रो नहीं आसिले समान आम समस्या समाधान करि परिबेन संगा आम संग टच रे ना ह्यूमन टच नहीं समान कर त लोकल लीडरशिप शुड बी एनकरेज्ड जे आम डे टू डे अफेयर आम संग रे करूची आम संग रे जोड़ी हे कि रहूची and local accountability ए जो local government bodies रहिले they must be accountable to the local people तांका काम करछन ना they must not be accountable to the government ए तम पई मो दायित्व सुन मो सरकार को पाखे दायित्व सुन मो केंद्र राज्य सरकार को कहबी केंद्र सरकार को कहबी no you are local governments are directly accountable to the local people the citizens of the local area they should have close contact close watch over the local authorities the people must have close watch over the local authorities and thereby effective performance in the functions of the local authorities can be ensured. भल भाव काम कर जगी देवे ना तेनाली जगी देला माने से लोक मैंने लोक पाखे अकाउंटेबल लोक पूरा क्लोज वाच रखीदे नजर तीक्ष्ण करके रखिले लोकल अथॉरिटी मान निश्चित भाव में इफेक्टिवली से काम करेंगे. लोकल गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भितर पार्थक्य कौन लोकल गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आंचलिक शासन स्थानीय शासन एवं स्थानीय स्वायत्त शासन ये दुईटा मध्य कौन पार्थक्य रही लोकल गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मोटे स्लाइड रे आपन 11 नंबर स्लाइड रे देखिए ताको ए गुडा बेसिक क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन इंटरव्यूज लोकल गवर्नमेंट बा आपन जिकर भी क्वेश्चन आजकल तो लोकल गवर्नमेंट को सिविल सर्विस रे गोटे पार्ट करी गोटे दिटा क्वेश्चन से पकाउची निश्चित भाव दिटा तीनटा जिकर क्वेश्चन थियो लोकल गवर्नमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज ऊपर 73 74 विभिन्न कथा को नेकी गोटे दिटा क्वेश्चन सिविल सर्विस रे मस्ट पाइबे जिकर जो फर्स्ट जो प्रिलिमिनरी जिकर पाइबे बड़ जिकर तो लिखिया को पकेबे आमी तो गोटे गोटे फेज रे आलोचना करछु लोकल गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ सिविल सर्विस एग्जाम लोकल गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भितर जो डिफरेंस रही एटा होची 19th सेंचुरी आमे दिरा जक भितर डिफरेंस जानले ब्रिटिश गवर्नमेंट हमको ये डिफरेंस जानिबारे बहुत प्रकार जो खुराक चुकैला सेतिर आमे देखुचंती जे लोकल गवर्नमेंट रे ब्रिटिश सरकार माने जो गोटे राज्य को जो प्रदेश जो कॉलोनी सिस्टम थिला उपनिवेश शासन थिला ताकू से प्रदेश मान को बस कॉलोनी गुड़ा को जो क्षमता टिके दे देले लोकल अफेयर्स रे टिके काम करो ताकू से माने लोकल गवर्नमेंट बोली कहले ब्रिटिश सरकार इंग्लैंड रे रहिले भारत रे ब्रिटिश सरकार शासन चलला कॉलोनियल रूल जदोले बिफोर 47 थिला
ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସବକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଶାସନକୁ ଏଠି ଚଳେଇଲେ। ତାଙ୍କ ଶାସନ ଚଳେଇବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବି ନ କଲେ ଲୋକ ବିଦ୍ରୋହ କରିବେ। କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବହୁତ ବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। 1905 ବା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1905 ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଟିକେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟାପୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ଲୋକାଲ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ତମେ ସବୁ ବୁଝ, ଛୋଟ ଛୋଟିଆ କାମ। ବଡ଼ ବଡ଼ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ରିଲେସନସିପ୍ କ'ଣ ରହିବ, ଟ୍ରେଡ୍ ରିଲେସନସିପ୍ କ'ଣ ରହିବ, ପ୍ରଡକ୍ସନ ଇକୋନୋମି ଉପରେ କ'ଣ ରହିବ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତମେ ବୁଝ ନା। ତମେ ଲୋକାଲ ଆଫେୟାର୍ସକୁ ବୁଝ। ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦେଇଦେଲେ, ତାକୁ ଲୋକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏଇ ଲୋକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍ପିୟର ଭିତରୁ ବା କନସେପ୍ଟ ଭିତରୁ ଆମେ ଆସିଲେ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ, ଯେଉଁଟାକି ଟଲମିନ୍ ସ୍ମିଥ୍ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଫର୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟର୍ମଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ମିଥ୍, ଟି ସ୍ମିଥ୍ ବୋଲି ଖାଲି ମନେ ରଖିଲେ ବି ହେବ, ଟଲମିନ୍ ସ୍ମିଥ୍ ସେ ତାକୁ ଏଇ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ପ୍ରପରଲି ୟୁଜ୍ କରେଇଲେ। ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କାଉଣ୍ଟର ସିଷ୍ଟମ ଟୁ ଦ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଆର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ତିନିଟା ଅଙ୍ଗ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅର୍ଗାନଟା ରହିଲା, ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ, ସେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅର୍ଗାନଟା ପାଇଁ ଇଏ ହେଲା ଲୋକାଲି ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ କାଉଣ୍ଟର ତାକୁ କଲା। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭଟା ଉପର ସ୍ତରରେ ରହିଲା, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ରହିଲା, ଇଏ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିକି ବିରୋଧୀ କରିକି ତଳ ସ୍ତରରୁ ଶାସନଟାକୁ ଚଳେଇଲା। ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବଡି ଗୁଡ଼ାକ ତଳ ସ୍ତରରୁ ଚାଲିଲା, ଲୋକାଲ ଆଫେୟାର୍ସକୁ ନେଇକି ଚାଲିଲା, ଲୋକାଲ ଲିଡରସିପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିଲା, ଲୋକାଲ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଲୋକାଲ ନିଡ୍ସକୁ ବିଚାରକୁ ନେଲା, ଲୋକାଲ ଅଟୋନୋମି ଦାବି କଲା। ଏବଂ ଯାହାଟାକି ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ଯେଉଁଟା ରହିଛି ତାକୁ ଏଟା ବିରୋଧୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲା। ଏବଂ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାଇ କମିଶନ ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ, ଟି ସ୍ମିଥ୍ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାଇ କମିଶନ୍ସ। 1849ରେ ତା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନର କୁପ୍ରଭାବ ଆଉ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନର ସୁପ୍ରଭାବ, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଭିତରେ ସେ ଡିଷ୍ଟିଂସନ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଉପରୁ ରହିବ ଏବଂ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତଳ ସ୍ତରରୁ ଶାସନରେ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଦେଖାଯିବ। ଲୋକାଲ ନିଡ୍ସ, ଲୋକାଲ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାର ଲୋକମାନେ ତଳୁ ପୂରଣ କରିବେ ଲୋକାଲ ଲିଡରସିପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ এইଭଳି ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟିଂସନ ଆମେ ଲୋକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଆସିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଟି ସ୍ମିଥ୍ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ। ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏବଂ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ତେଣୁ ଲୋକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଛି। ଲୋକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭିତରୁ ଆମେ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଆସିଛନ୍ତି। जो concept बेकार भी नहीं, it is as old as 1849 or 1850 when the particular term was first used by T. Thomas in a book Government by Commissions. Okay. जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट तार ହେଇଛି, ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେବା ଯେ କାହିଁକି ଆର ଗ୍ରୋଥ ହେଲା, ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ସେ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ହଉ ବା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବି ହଉ, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହକୁ ବି ଆମେ ଫର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଯେହେତୁ ତାର ବହୁତ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ମଧ୍ୟ ଫର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଚାଲିଛି, ଡିବେଟ୍ ଚାଲିଛି। ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଡିବେଟ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍, intellectual debate is being carried out. ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ much before that, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବହୁତ ଆଗରୁ ହେଇଛି। ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ସେ ଲୋକାଲ ବଡିଜ ଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରାଇଲା ଯେ ଯାହା ଫଳରେ କିଛି କିଛି କ୍ଷମତା ତମ ହାତକୁ ଦେଇଦେବା, ଯାହା ଫଳରେ କିଛି କିଛି
ऑटोनॉमी तुम पाखे रहिले लोकल नीड को फुलफिल करिया पई तमे आ विद्रोह करिवो नाही सैटिस्फाइड हेकि रहिजिवो सिविक एम्यूनिटीज गुड़ाक पूरण हो तुम छोट छोट रास्ताटे दरकार पानी जल दरकार हमको दरकार जो गुड़ाक लोकल नीड रहा सिविक एम्यूनिटीज जब तुमको तले दे दिगला बेसी परिमाण में डिस्ट्रस्ट लोक आसबनी लोक मान जो सरकार असंतोष से एत परिमाण से जाहिर करेंगे ना तेणु लोकल बॉडीज को इंडिया रे प्रकाश प्रतिष्ठा करने ब्रिटिश सरकार इच्छा नाला किंतु विथ ऑल रिलक्टेंस से लोकल बॉडीज को प्रमोट करने को चाहिए जदियो अर्बन लोकल बॉडीज प्रथमे जो मेट्रोपोलिस गुड़ाक रहा मेट्रो सिटीज गुड़ाक रहा मद्रास हो बॉम्बे हो सेठी समान प्रतिष्ठा कले परे समान गाँव रे मध्य ग्रामांचल रे मध्य रूरल एरिया रे मध्य लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट कले कहीं लोकंकर विश्वास भाजन हवा पाई बेसी क्षमता समान को न देकी लोकंकर विश्वास भाजन है कि संतुष्ट समान कर दवा पाई मार्जिनलाइज सेक्शन को बेसी न रखिबा पाई ये थिला एकमात्र बाट एकमात्र सूत्र आरी माध्यम से संभव हो पारि केवल ए क्षेत्र रे आमे नबा जे इंडिया रे 1870 रे गोटे माओ रिजोल्यूशन माओ गवर्नर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ स्टेट प्राय गोटे लेजिस्लेटिव रिवोल्यूशन किसी लेजिस्लेटिव पावर देवे बोली 1861 रे गोटे रिजोल्यूशन करथिले एवं से रिजोल्यूशन को वर्कआउट करागला माउस रिजोल्यूशन 1870 माध्यम रे जे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वर ऑथराइज्ड फॉर लोकल टैक्सेशन स्थानीय अंचल रे आंचलिक दाबी को पूरण करने जो पैसा दरकार ब्रिटिश सरकार देवेनि तुम तुम पैसा आदाय कर तेणु से पावर दिहला प्रोविंशियल गवर्नमेंट मान को प्रादेशिक सरकार मान को दायित्व दिगला तुम्हें तुम बजेट रे तुम जो वेलफेयर मेजर्स लोकल नीड्स को देखी करुच पैसा तुम निजे आदाय कर लोकल टैक्सेशन माध्यम दे वर ऑथराइज्ड कारण फाइनेंशियल स्टैंडर्ड बा स्टेटस से ठीक न रहिले स्टेबिलिटी न रहिले कदापि लोकल इन्वॉल्वमेंट लोकल नीड्स को पूरण करने लोकल ऑटोनॉमी यूटिलाइजेशन संभवपर नुहे तेणु माउस रिजोल्यूशन ऑफ 1870 वर्क इन दैट डायरेक्शन एवं किसी डिपार्टमेंट को जो गुड़ाक वेलफेयर डिपार्टमेंट खाली जोड़ा सहित राज्य शासन कौन से संपर्क नहीं प्रतिरक्षार बड़ बा ट्रेड रिलेशनशिप इंटरनेशनल रिलेशन किसी संपर्क नहीं से अनुष्ठान गुड़ा को पावर ट्रांसफर कर दिया गला प्रोविंशियल कंट्रोल रू से बाहर कर देकी लोकल बॉडीज गुड़ा को किसी डिपार्टमेंट को पावर ट्रांसफर कर दिया गला तेणु माउस रिजोल्यूशन ऑफ 1870 emphasize the necessity of local interest and care for education civic community जो गुड़ा कर care for education sanitation medical relief पब्लिक वर्क्स रास्ता घाट हम ये सब कम से व्यवस्था सुजोग कर दिया गया तेणु यही सब लोकल इंटरेस्ट को पूरण करने लोकल स्तर में सिविक कम्युनिटी जोगे देवाई लोकल टैक्सेशन माध्यम नीड्स गुड़ाकर फाइनेंशियल बर्डन को बोहिबाई माउस रिजोल्यूशन ऑफ 1870 was a milestone effort. Then came the after 12 years 1882 Ripon's resolution, Lord Ripon. He is regarded as the father of the local self-government in India. GK रा गोटे क्वेश्चन आपण मान पाई. Father of the local self-government in India होचुंदी Lord Ripon. एवं जीए लोकल बॉडीज एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट तार करथिले पॉलिटिकल एजुकेशन लोक को देबे ट्रेनिंग देबे लोक माने पार्टिसिपेट करिवे लोकल बॉडीज माध्यम रे एवं सी तांकरी बेले 1882 रो जो रिजोल्यूशन रिपन कले तांकरी समय रे अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज गुडा को स्पेसिफिक पावर पाइले रेवेन्यू रिसोर्स पाइले एवं से माने मध्य काम करिया पई रे डिसेंट्रलाइज्ड वे रे से माने मध्य ऑथराइज्ड दे काम कले. Tenu Ripon is regarded as the father of the local self-government and his resolution of 1882 is regarded as the Magna Carta of the local self-government system in India. Magna Carta, I mean the fundamental right ro mauliko adhikar ro
प्रथम दलिल हिसाब से मैग्ना कार्टा को इंग्लैंड ग्रहण करती 1812 ठीक से भाव में ये गोटे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भारत में मैग्ना कार्टा हिज रिजोल्यूशन ऑफ 1882 इज अ मैग्ना कार्टा तेणु लॉर्ड रिपन शॉर्ट क्वेश्चन आपण फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मैग्ना कार्टा ऑफ द लोकल गवर्नेंस सिस्टम है आउ लोकल बॉडीज गुड़ा को पावर्स दिया गला एवं रेवेन्यू रिसोर्स मध्य दिया गला फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मध्य समान को दिया गला प्रोविंशियल गवर्नमेंट माने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन सुविधा मध्य पाइले 1882 परठू 1885 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 आउ किसी एक्ट भी तैयारी हला 1883 to 1885 भितरे many acts were passed just to clear cut or just to demarcate earmark the powers and functions of the municipal bodies है ना जो municipal bodies गुड़ा का रहिला सहरांचल रे रहिला मद्रास रे हो कलकत्ता रे हो बॉम्बे रे हो तांको पाई clear cut provisions रहिला केमिति तैयारी हेबे how they will be organized what are the powers, what are the functions to be performed by them. It was clear-cut terms between 1883 to 1885. Many acts were passed to regulate all those local bodies. किंतु ता भितर गोटे प्रॉब्लम रह गला जो लोकल बॉडीज मानकरे माइनॉरिटी मेंबर मानकर रिप्रेजेंटेशन नथिला आ ऑफिशियल कंट्रोल बेसी थिला दुईटा बड़ा प्रॉब्लम माइनॉरिटी मानकर रिप्रेजेंटेशन कम थिला माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होंतु रिलीजियस माइनॉरिटी होंतु समानकर कंट्रोल समानकर संख्या हाउ दे विल बी रिप्रेजेंटेड तांको पय रिजर्वेशन व्यवस्था ई सब कथा किछि नथिला द्वितीय कथा थिला जे ऑफिशियल कंट्रोल से संस्था गुडा को ऊपर बहुत थिला जा फल रे लॉर्ड रिपन चेष्टा करथिले मध्य संभव ही पारि नथिला शेष बेला तांकर संभव ही पारि नथिला ब्यूरोक्रेसी भी ताको अपोज करथिला तांका जो लिबरल एटीट्यूड थिला लॉर्ड रिपन को जो लिबरल एटीट्यूड थिला से लिबरल से वाइसरॉय लिबरल एटीट्यूड को ब्यूरोक्रेसी ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी ग्रेटली अपोज्ड किंतु लॉर्ड कर्जन जेतबेले आसिले सेतबेले ऑफिशियल कंट्रोल आहुरी बढ़ाई देले हला तांका बेले दाबी हला जे केमती ऑफिशियल कंट्रोल कम ब्यूरोक्रेसी पूरा अपोज करले लिबरल व्यू को ऑफ लॉर्ड रिपन these liberal views of Lord Ripon. Kintu Lord Curzon जेतल तांको रिप्लेस करले he increased official control over local bodies in the late 19th century. Late 19th century उनविंश शताब्दीर शेष भाग को लॉर्ड कर्जन जेतल रिप्लेस करके आसिले सक्सेसर हे के आसिले वाइसरॉय हिसाब रे से बढ़ाई देले ऑफिशियल कंट्रोल ता भितरे ब्रिटिश सरकार भारतीय मान को संतुष्ट करिया पई आउ लोकल पावर्स लोकल अथॉरिटीज किछि दबा पई रियलाइज करिकि द रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन इन 1908 that was appointed and the recommendations were put into operation. Royal Commission on Decentralization was appointed in 1908 and this was just to grant some more powers to village panchayats, including some judicial jurisdictions are to be earmarked for them, and expenditures on village works, schools, that has to be regulated through local initiatives, local leadership, local organizations. तेणु ये रॉयल कमिशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन मध्य गोटे बड़ माइलस्टोन हो गला हमरो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया रो डेवलपमेंट पाई जो रेस्ट्रिक्शन गुडा को थिला जो रेगुलर ग्रांटिनेड दिया जाउ नथला प्रोविंशियल गवर्नमेंट मान को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट माध्यम रे यूटिलाइज करिया पई हटे दिया गला से रेस्ट्रिक्शन गुडा को हटे दिया गला तो ये गोटे पॉसिबिलिटी सृष्टि कर दला गोटे रेस्पोंसिबिलिटी क्लियर टर्म्स से दे दला जा फल रे प्राइमरी एजुकेशन प्राइमरी हेल्थ सैनिटेशन एगुड़ा डेवलपमेंट हो पारिबो थ्रू लोकल इनिशिएटिव्स विथ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोकल बॉडीज एंड विथ देयर ओन फाइनेंस कारण तांगर फाइनेंशियल रिसोर्सेस को मध्य बढ़ाइबा पई एठी व्यवस्था करा गला तो रॉयल कमिशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन 1908 रो गोटे बड़ संस्था हला बड़ प्रक्रिया हला जा माध्यम रे संभवपर हो पारिबो ता छड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो
1919 ରେ आसिला ता पूर्व गोटे इंडिया रिजोल्यूशन करा जायथिला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स पूर्व गोटे रिजोल्यूशन करा हेतिला एवं से रिजोल्यूशन माध्यम रे जो लोकल बॉडी मानन को जो माने अंडर चार्ज थे कि थिले अनचेंज माने जो मानकर किछि एते फाइनेंशियल स्टेटस रे किछि इंप्रूवमेंट आसी नथिला ऑल्दो देयर वाज रेगुलेशंस सेथरे से गैप को पूरण करिया पई से असुविधाटा को दूर करिया पई प्रचेष्टा करा गला थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजोल्यूशन ऑफ 1915 जो रिजोल्यूशन 1918 और 1919 रो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट माध्यम रे मध्य ता प्रकाशित हला किसी सब्जेक्ट को ट्रांसफर करा गला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ट्रांसफर सब्जेक्ट को नेकिसी चलला ताको क्षमता दे दिया गला पूरा तू ने एते क्षमता पावर्स these powers have been transferred to you hierarchy system under hierarchy द्वैत शासन चलेला पॉपुलर गवर्नमेंट परिचालना ପାଇଁ व्यवस्था करा गला स्वतंत्र पावर से मन को दिया गला फाइनेंशियल पावर भी दिया गला रिजर्व सब्जेक्ट किछि रखा गला भी तांको ପାଇଁ स्वतंत्र भाव एटा दीज आर द स्पेशल सब्जेक्ट्स फॉर यू ए सब व्यवस्था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 माध्यम रे करा गला ता सत्वे साइमन कमिशन माध्यम रे चेष्टा करा जायतिला बट साइमन कमिशन वाज ग्रेटली अपोज्ड 1930 बेल को साइमन कमिशन जो रिपोर्ट भी देले से रिपोर्ट रे मध्य विशेष परिमाण रे प्रोग्रेस विलेज पंचायत पे व्यवस्था रहिला नाही ना साइमन कमिशन वाज ग्रेटली अपोज्ड इन इंडिया साइमन गो बैक वाज द स्लोगन देन केम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को आमे वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन गोटे बड़ सोर्स हिसाब रे ग्रहण करते वर्तमान भारत संविधान बहुत विषय ता भीतर स्थान पाए सेठु आसी तो ए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को बढ़ाइबा पई लोकल सेल्फ गवर्निंग अथॉरिटीज गुडा को क्षमता दबा पई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे मध्य व्यवस्था रहिला जेतरे में स्वाधीनता पक्ष पड़े आसले constitutional provision article 40 re directive principle of state policy part 4 of the Indian constitution although it is non judicial the judicial sanction ta pachre nahi fundamental right violation hele ame article 32 re ba 226 re ame supreme court ba high court pa ko jai parchu they are justiciable fundamental rights are justiciable directive principles are non-justiciable but still then under article 40 in the or under the category of the Gandhian principle the village panchayats are to be organized and accordingly the particular community development scheme was introduced in 1952 the Balwantara Mehta committee recommended for democratic decentralization in 1959 and in 1959 in Rajasthan became the first state where the democratic decentralization system or the Panchayat Raj system which was nicknamed by Pandit Nehru, the then Prime Minister. Democratic decentralization को बुझी परिवेनी बलवंत राय मेहता कमिटी जो रेकमेंडेशन दे दला डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन 3 टायर सिस्टमैटिक काम करू बोली पंचायत राज व्यवस्था काम करू बोली ए पंचायत राज नाटा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पंडित नेहरू दे देले सहज रे भारतीय बुझी परिवे तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बढ़ेला लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रो स्थिति को एठी दृढ़ करेला एवं थ्रू 73rd and 74th amendment acts of 1992 constitutional sanction have been given constitutional sanction दिया गला तको संवैधानिक स्वीकृति दे दिया गला जा को हम डिटेल भी पढ़िबा संवैधानिक स्वीकृति दे दिया गला जा फल रे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज माने कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन सहित निर्धारित पावर पाई रेगुलर वे रे प्रॉपर इलेक्शन फ्री फेयर इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिशन माध्यम रे कंडक्टेड इलेक्शन माध्यम रे सेमानकर कार्य ठीक भाव रे संपादन करि पारुछंती एवं रिजर्वेशन फॉर वुमेन पई व्यवस्था भी रखा गला आगर नथिला व्यवस्था रखा गला तो 1/3 रिजर्वेशन 33% रिजर्वेशन रहिबो एवं ओडिसा भले किछि राज्य रे मध्ये इट हैज बीन इंक्रीज टू 50% लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी जो गुड़ा रहा से गुड़ाक जदि लाभ को आम देखा जी आम डिस्कसन कले लोकल रिसोर्सेस रो
लोकल प्रोब्लेम रो सॉल्यूशन लोकल रिसोर्स रो प्रॉपर यूटिलाइजेशन एवं लोकल लीडरशिप रो माध्यम रे लोकल नीड्स को पूरण करबा जो प्रक्रिया एटा संभव हो पारुची these are the advantages of local self government but besides that it suffers from generating or putting the seeds planting the seeds of regionalism आंचलिकतावाद को वृद्धि करूची बोली नेशनल प्रोब्लेम आ माध्यम समाधान होनी बोली किसी समालोचना मध्य क्रिटिसिज्म मध्य डिसएडवांटेजेस रही बोली मध्य कहा जाउची है ना एवं जेतरा में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रो इवोल्यूशन कथा इंडिया रे कहंती हमें तो टिके पूर्व भी नेले जे बलवंत राय मेहता कमिटी जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को जो 52 रे कार्यकारी करा हेतला कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ताको एस्टिमेट तारो रिव्यू करिवा पई द बलवंत राय मेहता कमिटी वाज अपॉइंटेड इन 1957 एवं बलवंत राय मेहता कमिटी जो रिकमेंडेशन दला से फॉर द implementation of democratic decentralization system एवं democratic decentralization को गोटे 3 टायर स्ट्रक्चर माध्यम रे कार्यकारी करा जो ग्राम पंचायत एट द बेस पंचायत समिति एट द मिडल ऑर्डर एंड जिला परिषद ताको इंप्लीमेंट करिया पई 1953 रे अक्टोबर 2 रे कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम को इंप्लीमेंट करिया पई नेशनल एक्सटेंशन सर्विस कार्यकारी हला जो ब्लॉक रे हम सब देखंती एग्रीकल्चरल ऑफिसर वेटनरी ऑफिसर से पंचायत ऑफिसर ई स्कीम ए पोजीशन गुडा को तयारी करा गला जे ई सब स्पेशलाइज काम करिया पई ई सब विशेषज्ञ कर्मचारी मान को स्थान दिया गला नेशनल एक्सटेंशन सर्विस एवं ए टोटल प्रोसेस को 52 ने कार्यकारी करा हेतला कम्युनिटी डेवलपमेंट माध्यम रे 5 वर्ष परे बलवंत राय मेहता कमिटी को रिव्यू कला डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कथा कहला 59 ने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम काम कला एवं राजस्थान बिकेम द फर्स्ट स्टेट फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश जोटी पंचायत राज सिस्टम कार्यकारी कला तापरे 77 मसिया रे अशोक मेहता कमिटी अपॉइंटेड हला अशोक मेहता कमिटी गोटे 2 टायर स्ट्रक्चर कथा कहला एवं 2 टायर स्ट्रक्चर भितरे से किसी कंपलसरी पावर्स कथा कहला किसी ऑप्शनल पावर्स कथा कहला एवं जिला परिषद ऊपर से गुरुत्व देला जे एटा गोटे रेस्पोंसिबल एजेंट हबो फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लोकल सेल्फ बॉडीज मझी पंचायत समिति को हटाई देला एवं अशोक मेहता कमिटी रो जो रहिला चिंताधारा रहिला सेटा स्टेट कंट्रोल को बहुत परिमाण में बढ़ाई देला स्टेट रिप्रेजेंटेटिव मान को एठी स्टेट एग्जीक्यूटिव को बेसी क्षमता सेतरे दबा जो चली थिला ताको बंद करिया पई किछि व्यवस्था करा गला नै एंड टू ओवरकम दैट इन जीवीके राव कमिटी वाज अपॉइंटेड इन 1985 एवं से जीवीके राव कमिटी हला प्लानिंग कमिशन ताको नियुक्ति दला जीवीके राव कमिटी एवं से कहला जे जिला परिषद इज टू बी गिवन प्राइम इंपोर्टेंस ऑल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट माने करिवे तांको जिल्लार सबु डेवलपमेंटल प्लान्स प्रोग्राम्स एस्टिमेट्स बजेट एलोकेशन से माने सब करिवे एवं से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिशन माध्यम रे जिला परिषद रो सुपरविजन रे पूरा जिल्ला रे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काम करिवो किंतु रेगुलर इलेक्शन हो आगु सब मन इच्छा भाव इलेक्शन होतला 5 वर्ष 6 वर्ष धरि इलेक्टेड बॉडी नथिला रेगुलर इलेक्शन ऊपर गुरुत्व देला जीवीके राव कमिटी ऑफ 1985 तापरे असला एलएम सिंघवी कमिटी 1986 रे वर्ष को परे राजीव गांधी का प्रधानमंत्री समय दिस पर्टिकुलर बॉडी वाज अपॉइंटेड कमिटी वाज अपॉइंटेड एलएम सिंघवी कमिटी एवं एलएम सिंघवी कमिटी जो वर्तमान जो 73rd 74th अमेंडमेंट हेची ता पई बाट फिटे दला 73rd 74th अमेंडमेंट पई से बाट फिटे दला जे संपूर्ण भाबरे कोभଳି भाबरे जो ऑर्गेनाइजेशंस रहिबो पावर स्पेसिफिक हबो पीआरआई मानकर कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दैट इज वेरी इंपोर्टेंट recommendation of LM Singhvi committee. Constitutional recognition must be given to PRIs. Constitutional recognition आसिला ने आउ सब आसिगला पावर्स फंक्शन सब रेगुलेटेड हला संविधान देशर सब बड़ आईन ताकू नियंत्रण कला किंतु
एलएन संघवी कमिटी जो रिकमेंडेशंस को हम 73rd 74th रे वर्कआउट करिकी 73rd 74th एक्ट माध्यम रे कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दे देले पीआरआई मन हला 73rd रे रूरल 74th रे अर्बन जीके रो क्वेश्चन एवं जो 73rd 74th अमेंडमेंट माध्यम रे दीटा नुआ शेड्यूल जोड़ी है गला 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल जीके रो क्वेश्चन दीटा शेड्यूल जोड़ी हला पार्ट 9A of the Indian Constitution 9 और न्यू पार्ट्स ऑफ 9 बोली हमें कहिबा तते दीटा नुआ शेड्यूल जोड़ी हला 11th और 12th शेड्यूल 11th और 12th शेड्यूल ले हमें लिस्ट ऑफ फंक्शंस बांटी देले पंचायत म्युनिसिपैलिटीज भितरे सब पावर्स जो बांटी देले पावर्स स्पेसिफिक कर देले एवं जहा फल रे जो रहिला ग्राम सभा रहिला गाँव रे तार गुरुत्व बढ़िला अपन देखो ग्राम सभा एक्ट भी हमें ओडिशा पड़ला भी नबा ग्राम सभा एक्ट भी गोटे पास होइछि से ग्राम सभा एक्ट माध्यम रे चेष्टा करा गला जे लोक मानकर तळ स्तर पार्टिसिपेशन रहिबो तळ स्तर जहा फल रे लोक माने पूरा गाँव बजेट तैयारी करिवे गाँव डेवलपमेंटल प्लान को अप्रूव करिवे सब क्षेत्र में पीपल विल बी इन्वॉल्व ग्राम सभा रोल जो सिंघवी कमिटी कहितिला इठी तार वास्तवता बढ़ी गला मेन फीचर्स ऑफ द एक्ट हिसाब रे 73rd रो हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ग्राम सभा ताको कहि परिबा ग्राम सभा लगे तेणु दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जे पावर डिवोल्यूशन हबो फाइनेंशियल स्टेटस दिया जिवो रेगुलर इलेक्शन हबो गवर्नमेंटल कंट्रोल कमिबो कारण पावर स्पेसिफिक गले गवर्नमेंट रो कंट्रोल नियंत्रण कमी जिवो एक्सेसिव कंट्रोल रहबो नाही तापरे हमें वर्किंग ऑफ पंचायत राज सिस्टम को जाइचंती इन ओडिशा जाको हमें आलोचना भी करि सालेनी जे ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश हला परे सेपरेट प्रोविंस केबे हला 1936 से समय रे गोटे आईन तैयारी हेतिला नवकृष्ण चौधरी वाज द चीफ मिनिस्टर एंड वन पर्टिकुलर प्रोविजन वाज मेड अंचल शासन अंचल फंड ए अंचल शासन अंचल होची लोकल एरियाज अंचल शासन अंचल फंड ता पय गोटे स्वतंत्र फंड रहिबो आर्थिक स्थिति रहिबो एई परु पैसा नै कि पास करा जिवो तो स्वतंत्र प्रदेश तैयारी हे सला पर जो सब असुविधा हमें फेस कले 1948 रो स्वाधीनता पर 47 रो स्वाधीनता पर हमें ताको टिके पैच अप करिया पय ताको आखि आगे रखी कि से फाइनेंशियल स्टेटस एवं लोकल इन्वॉल्वमेंट पय कारण हमें बहुत दिन धरी बिहार बंग संगे मिसिक थिले तो नवकृष्ण चौधरी चीफ मिनिस्टर समय चीफ मिनिस्टरशिप समय अंचल फंड और अंचल शासन बोली व्यवस्था रहिला एवं जोथि पय ओडिशा स्टेट एबोलिशन एक्ट ऑफ 1951 गृहीत हला राजा महाराजा शासन एबोलिशन हबो एवं अंचल शासन एक्ट 1955 रे पास हला तो ये गोटे अर्ली स्टेप हिसाब रे हमें नबा अर्ली स्टेप इंडिया गवर्नमेंट रो विभिन्न आईन संगे 52 रे कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम को कार्यकारी करिया सहित हमें अंचल शासन एक्ट गोटे 1955 रे एठी गृहीत कले जोतरे पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन एग्रीकल्चर कटेज इंडस्ट्री एगुडा को ऊपर गुरुत्व सब दिया गला हला ओडिसा रे जेमति का पृथ्वी जेमति भारत रो विभिन्न अंचल रे कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक सब सीडी ब्लॉक सब काम कला से भली भाव रे ओडिसा रे मध्य 52 रे कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक सब काम कला कम्युनिटी डेवलपमेंट 52 रे कार्यकारी कला 53 रे नेशनल एक्सटेंशन सर्विस रे विभिन्न कर्मचारी नियुक्ति हेले संप्रसारण अधिकारी माने नियुक्ति हेले विभिन्न क्षेत्र रो एग्रीकल्चर रो एनिमल हजबेंड्री रो इत्यादि रो विभिन्न स्पेसिफिक डिपार्टमेंट रो कोऑपरेटिव रो समस्त अधिकारी जोग देले एवं कार्य चलिला 5 वर्ष पर्यंत 5 वर्ष पर जो रिव्यू है बलवंत राय मेहटा कमिटी को अपॉइंटमेंट करा गला टिके पूर्व आम आलोचना करुले रेकमेंडेशन देला डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पाई एवं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो 3 टायर सिस्टम ताहा प्रथमे राजस्थान रे काम कला अक्टोबर 2 तारिख रे राजस्थान रे काम कला एक नंबर क्वेश्चन आपण मान जीके राजस्थान रे
First state, Rajasthan became the first state to implement the democratic decentralization system or implementation of the Panchayat Raj system on the basis of the recommendation of the Balwant Rai Mehta Committee on 2nd October 1959, followed by Andhra Pradesh. এবং ওড়িশারে আমি তাকে কার্যকারী কলে on 26 January 1961. 26 January 1961 রে ওড়িশারে তাকে কার্যকারী করাগলা 3 tier system. मेहटा कमिटी जो रेकमेंडेशन कला ग्राम सभा उपरे गुरुत्व देला, पंचायत समिति ग्राम सभा उपरे गुरुत्व देला. भवानी गोटे स्क्रीनशॉट रखी दबो हला. ग्राम सभा टू लोकसभा बोली गोटे स्लोगान उठैला. जयप्रकाश नारायण को ना सुनिथिबो आमे पढुथिले इंडियन पॉलिटिकल आइडियाज रे जयप्रकाश ना संपूर्ण जो टोटल रिवोल्यूशन न कांसेप्ट तंग नैथिले, संपूर्ण क्रांतिर कथा नउथिले. से स्लोगान तंकर देले. तंकर गोटे ड्रीम थिला ग्राम सभा रु लोकसभा, जोटा कि आरि माध्यम रे कार्यकारी हला. ग्राम सभा लोक माने पूरा ग्रासरूट रे तळे रहिले. लोकसभा देशर सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक निर्वाचित लोक प्रतिनिधि मान को नहीं गठित संस्था रहा. तो ग्राम सभा लोकसभा पर्यंत इंटीग्रेटेड होकर रहिले जाकि भारत रे गणतंत्र सफल हो पारिबो. तेणु 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट LM सिंघवी कमिटी जो प्रस्ताव को आखि आगे रखी गृहीत है 1992 रे नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री समय रे. एवं ता पूर्व वर्षक पूर्व आम ओडिशा रे गोटे जिला परिषद एक्ट ओडिशा जिला परिषद एक्ट ऑफ 1991 पास कर सारी. ग्राम पंचायत समिति एक्ट 1992 रे पास करा है कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट रो जो विधि व्यवस्था को कार्यकारी करा गला. तापरे भी 33% रिजर्वेशन को हमें बढ़ाई कि 50% वोमेन रिजर्वेशन पाई मध्य व्यवस्था रखले. ओडिशा इज अमंग द फ्यू स्टेट्स, भारत रो किछि अल्प संख्यक राज्यों भितर ओडिशा होछि अन्यतम जोटी 50% रिजर्वेशन मध्य रखा जाइछि. बलवंत राय मेहटा कमिटी जो रेकमेंडेशन देथिला जो 3 टायर स्ट्रक्चर हबो, ओडिशा रे हमें बेले बेले 2 टायर स्ट्रक्चर भी करिसेंती मझरे मझरे. जिला परिषद को बाद दे देखिए किसी परिमाण किसी जगह रे हमें ग्राम पंचायत और पंचायत समिति माध्यम रे सीमित रखी मध्य कार्य करछन्ती. विभिन्न राज्य रे से प्रक्रिया थिला. आमे भी एथरे वेराइटी आनुथिले. किंतु जेतबळे 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट से पड़े आसला 73rd 74th अमेंडमेंट रे आउ यूनिफॉर्मिटी आनिया पय चेष्टा करा गला. देश सारा गोटे प्रकार आईन, सेठी हजार आईन नाही. सेठी रेगुलर इलेक्शन हम, स्टेट इलेक्शन कमिशन यही भाव में काम कर, स्टेट फाइनेंस कमिशन एमती भाव में काम कर. विधि यही पावर्स गुड़ाक समस्ते भारत सारा सबू राज्य में व्यवहार करेंगे. ये सब कथा से रहा. तेणु से आम विधि व्यवस्था भितर रही 73rd अमेंडमेंट ठार 74th अमेंडमेंट अर्बन एरिया 73rd रूरल एरिया आम जोटा पंचायत राज व्यवस्था बोली कहते कार्यकारी करने ओडिशा रे चेष्टा चली. तेणु ओडिशा रे पंचायत राज व्यवस्था लोकल रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज इन जनरल मध्य भारत रे जो भी विकास संगे जेहेतु आम पार्ट ऑफ दैट आम इम्प्लीमेंट कर गोटे पाद आगे की जाकि भी किसी जगह आम कर स्वतंत्र अंचल शासन अंचल फंड कथा बहुत आगु चिंता करते कार्यकारी करागला. अन्य राज्य रे अन्य लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिजोल्यूशन माध्यम आम चिंता करथिले 50% रिजर्वेशन कथा. बर्तन चिंता करा होची अन्य राज्य रे 50% रिजोल्यूशन को एक्सटेंड करिया पई वोमेन मान को पई. तेणु ये सब व्यवस्था रे ओडिसा रो कंट्रीब्यूशन मध्य यथेष्ट रही. तेणु दिस इज ऑल अबाउट द 3 यूनिट्स व्हिच हैव बीन टेकन अप फॉर डिस्कशन टुडे. यदि किसी डाउट्स था यू कैन गेट इट क्लैरिफाइड. आपनकर असुविधा कोन अछि? पाठ संक्रांत एकेडमिक संक्रांत कौन असुविधा अच्छी? प्रभाती अपा, मिताली दीदी किसी नहीं प्रॉब्लम? रिंकी अपा किसी नहीं? नमस्कार नमस्कार. सुशांत भाई सर बही मोर 102 टा डबल पळे आछि 101 आसे नै.
ଆପଣ 102 ଡବଲ ଆସିଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତୁନି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଦିସ୍ ବୁକ୍ କାଲି ଆପଣ କ୍ଷୀରୋଦ ସାର୍ଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମର ଇଏରେ ହେଲା। କାଲି କ୍ଷୀରୋଦ 11 ସାର୍ କାଲି 11ଟା ପରେ କ୍ଷୀରୋଦ ବେହେରା ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ କ୍ଷୀରୋଦ ବାବୁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ଏଇ ବହିଟା ଆସିନାହିଁ। ଡବଲ କହିଲେ ଅଡୁଆ କହିବେ 101 ଆସିନାହିଁ। ହଁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲେ ପୁରା ଭୁଲରେ ବାବା ଟିକେ ମିଛ ଟିକେ କହିବା। ସତ କହିବେ ଆଜ୍ଞା କହିବେ ସେଟା ଫେରାନ୍ତୁ ଅମୁକ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପୁଣି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଫେରେଇବେ, ପୁଣି ଏଟା ଯାଉନଥିବ ଏତେ କଥା। ଆପଣ କହିବେ ମତେ 101 ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମ୍ବର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଆମ କ୍ଷୀରୋଦ ଷ୍ଟାଫ ଲିଷ୍ଟରେ କ୍ଷୀରୋଦ ବାବୁ ମାରିଦେବେ ତଳ ଆଡକୁ, ନନ୍ ଟିଚିଂ ରେ ତଳ ଆଡକୁ ଷ୍ଟାଫ ଲିଷ୍ଟରେ ମାରିଦେବେ। ଷ୍ଟାଫ ଲିଷ୍ଟରେ ସାର୍ ତଳ ଆଡକୁ କ୍ଷୀରୋଦ ବାବୁ ଅଛି। 11:30 ପରେ କାଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ମତେ କହିବେ। ସାର୍ 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 ଆଇ ଏମ୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦ ଅଫିସ। ହଁ ମୁଁ ସାର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାର୍ ସାର୍ ଅଫିସରେ ଅଛି, ମତେ କହିବେ। ସାର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଫିସରେ ଅଛି, ମତେ କହିବେ ଆପଣ କଣ ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ହଁ ଆଇ ମୁଁ ୱିଲ୍ ତ ଏଇଠି ମୁଁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି ଏଇଠି କଳ୍ପନାରେ। ମୁଁ ତ ସେଇଠି, ଆମର ଅଫିସ ତ ସେଇଠି ନା ବିଜେପି କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ। ଓ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର? ହଁ 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 ଆର୍ଟ୍ସ ମୁଁ ତ ବ୍ଲକ। ଏଇଠି ଜଷ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପସ ର ୱାକେବୁଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ମୋର କ୍ୱାର୍ଟର ଏଇଠି ଅଛି। ଶ୍ରୀଦେବୀ ଛକ ଯୋଉଟା ଅଛି କଳ୍ପନା ଛକ ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା 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 ଆପଣ କୋଉଠି ସର୍ଭିସ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ SSCPD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛି। ୱାଇଫ୍ OFS ଅଛନ୍ତି, ଓଡିଶା ଫାଇନାନ୍ସ ଆଚ୍ଛା ସର୍ଭିସରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର ଅଛନ୍ତି। ବଢିଆ 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 ବଢିଆ। ଆଉ ୱାଇଫ୍ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର KK ଭାଷା ସାର୍ ତାଙ୍କର ଟିଚର। ଥିଲେ ହଁ ଯିଏ ଆମର ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲେ ଭିସି ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଯିଏ ସବିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଇଡ, ସେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ମ୍ୟାଡାମକୁ ନମସ୍ତେ କହିଦେବେ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଅଲ୍ ମାଇ ମୁଁ ବ୍ଲେସିଂ ହଁ ବ୍ଲେସିଂ। ହଁ ଆପଣ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ବି ଦରକାର ହବ ଆଇ ଏମ୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦ ଅଫିସ। ଆଉ ମୁଁ ସାର୍ ରିଟାୟାର୍ଡ ପରେ ଆଇ ଏମ୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ ହଁ ଯଦି ଆପଣ ସମୟ ପାଇବେ, ମୁଁ 10:30ରୁ ପ୍ରାୟ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ହଁ ଅଫିସ। ସାର୍ ସିଓର ସିଓର ଦେଖା କରିପାରିବି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖା ଆସନ୍ତୁ କରିପାରିବି। we'll meet। ହଁ ସାର୍ ଯିବି 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 ଯିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆଉ କାହାର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁହନ୍ତୁ? ସାର୍ ନମସ୍ତେ। ହୁଁ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହୁଁ ସାର୍ ଆମର ନମସ୍କାର। ସେମିଷ୍ଟାର କେତେବେଳେ ହବ, ମାନେ ଆରାଉଣ୍ଡ କେବେ ହବ? ସେମିଷ୍ଟର ନହେଲେ ଭଲ ହବନି, ସାର୍ ଆମର ନହେଲେ ହବନି। ହବନି ସେମିତିରେ। 18 ତାରିଖ ପରେ ଯୋଉମାନେ ଅକ୍ଟୋବର ସେମିତି ବ୍ୟାଚ୍ କେମିତି ହବ? ହବନି। ସାର୍ ସେମିତି କେମିତି ହବ? ସେମିଷ୍ଟାର ନହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଆମର ମାନେ ଷ୍ଟଡି ଟା କେତେ ଦୂର ଯାଇଛି କେମିତି ଜାଣିବୁ? ନାଇଁ ହବ ଅକ୍ଟୋବର ନାଇଁ ଯୋଉ କଣ ସେଟା କହିଲି, ଆପଣଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖ ପରେ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ହେଲା। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଆଜ୍ଞା 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 ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ବୋଧେ 11ରେ? ସାର୍ ହଁ ସାର୍। ହଁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର କ୍ଲାସ ଅଛି ବୋଧେ? ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଁ କହ ବିନୋଦିନୀ କୁହ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୋର ବୁକ୍ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିନି ମୋ ପାଖକୁ। ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏଇ ମଙ୍ଗଳବାର ବୁଧବାର ଭିତରେ। ସେ ତ ଅଫିସରୁ ଡେସ୍ପାଚ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟାଲ ଇଏରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ଦେଖ ଯଦି ମଙ୍ଗଳବାର ଭିତରେ ନ ପାଇଲ ଆମେ ତାପରେ ଷ୍ଟେପ ନେବୁ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଜରୁର। ଆଜି ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ ଥିବ, ତମେ ଯୋଉ 105 ଯେତେବେଳେ ପେପର ନାହିଁ ଆମର ସାର୍ ଥିବେ, ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ଥିବେ, ସାର୍ ଆମର ପଟେଲ ସାର୍ ଥିବେ। 105 ପେପରରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଜବରଦସ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ। ପିଲା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଯେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ମୋ କ୍ଲାସକୁ ନେଇକି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ କ୍ରିଟିସିଜମ ସବୁବେଳେ ରହିବ। କ୍ରିଟିସାଇଜ କରି କହିବ ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବୋଲି, ସେଇଟା ହଉଛି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? ଡରିବନି କିଛି, କହିବ ଭୁଲ ଭଟକା କଥା କହିବ ନା, ନହେଲେ କେମିତି ହାଉ ୱିଲ୍ ରେକ୍ଟିଫାଏ ଅସ୍। ନାହିଁ କିଛି।
ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଅର୍ଡର ଓକେ ସାର୍। ଠିକ ଅଛି ଭବାନୀ। ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ୱିଲ୍ ମିଟ୍ ଅଗେନ୍ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। Thank you, sir.